very proud moment for me, a moment of great honor to introduce today's speaker. And it is none other than our own Dr. Liaquat Namole, a friend, a brother, a guide. I think today words will fall short, time will fall short if I have to introduce Dr. Liaquat Namole. But just to say a few words about him, he has a rich experience of 27 years in the field of homeopathy, and he's one of the most passionate homeopaths. He has conducted more than 300 seminars, and one of them was about diabetes. I think it was an amazing seminar on diabetes. It has really helped everyone to have a broad vision about metabolic disorders. He's the author of the book Homoeopathy, about which we also spoke about yesterday, and we are waiting for more publications from him. And he has invented 2 new drugs in homeopathy. And as a person, we know Dr. Liaquat since long. We've been together in college, and he has he makes learning very simple and learning with fun. And that's the reason why, whether it is a very senior person or a newcomer, everybody finds it very comfortable and are able to learn very easily from him. And that's the reason you can see on this platform and other platforms also, so many students have been guided and mentored by Dr. Liaquat, and they have been really doing very well. And he has one more he always says is, we live homeopathy. And I can understand, because whenever you're with him, it is every moment, every sentence is always either a rubric. It will just flow out of him. And so much so that even when you discuss anything on the phone with him, even he's not seen the patient, he has not, but just on what you say, he is able to just come out with the remedy. So it is so amazing to learn and hear from him. Friends, without wasting any more time, let's give Dr. Liaquat Namole a big round of applause. Over to you, Dr. Liaquat. My God, I am so much flattered. I don't know, but Nishu is a darling to me. He's a very मतलब बहनों में भी favorite बहन है मेरी वो, है ना? क्या नहीं चल रही? Oh, thank you. Acha friends, I have not prepared anything to because Dr. Manoj is not there, so there was nobody. So I am taking the lecture today. I think we should start with what I feel is we should start with how to study. Is it okay? Hello? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. So let's understand. Thank you, sir. Let's understand the process of study. Okay, like what I do, I am telling you how I study, how I understand people, how I understand remedy. Okay, one thing is though by reading Mathematical, and that is there. Okay, but ultimately it is you, right? Ultimately it is the player who has to go and perform. You a number of reads you book, books you read, and a number of coachings you do, but still when it comes to playing in the match, then it is different, right? क्योंकि मेरे जूनियर्स मेरे क्लिनिक में, मेरे स्टूडेंट्स मेरे क्लिनिक में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, या आप कॉलेज की ओपीडी में प्रिस्क्राइब कर रहे हो, और जब आप अपनी खुद की क्लिनिक में, या फिर आप जब जाके when you are being called as the consultant or the treating physician, then it is different, right? So I will try to explain you as to what I do and what exactly we should do. I mean, whatever you find applicable from my experience or whatever I'm telling, it'll be an achievement for me. My mantra is very simple, as you all know. Yesterday, Dr. Manisha has said, keep it simple. है ना? Please remember, ये 3 words जिंदगी में कभी भूलना नहीं. Keep it simple. ओके आप जितना वो केस को सिंपल रखोगे, आप उसमें जितनी ज्यादा पेचीदगी नहीं भरोगे, जितना भी लाइक more complicated words, the more complicated concepts, and the more complicated pathophysiology and all, if you go in, then you're going to get mad. Okay, and you are going to land nowhere. तो जितना उसको सिंपल रखोगे, बस ठीक है, क्या है, ऑटोइम्यून डिसीज है, बस हो गया.
उतना काफी है, रोमेटिक अर्थराइटिस है उतना काफी है। आप समझ रहे हो ना? अब उसके अंदर फिर उंगलियों का है या बड़े जॉइंट्स का है, या फिर व्हाट टाइप इट इज, वेदर इट इज एएनए, वेदर इट इज एचएलए पॉजिटिव, और वेदर इट इज सीरो नेगेटिव एंड ऑल, वो थोड़ा सा दैट बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट to treat, especially when it comes to treating, like selecting the potency and all becomes very difficult. Okay, like what Dr. Mann also had said, he starts with 30, goes back to 6, or goes to 200 and then comes back to 6. Or what Dr. Akhtar that day said, he gives starts with 5 strokes and then gives 6 strokes, and there are simple things. So try to keep it simple when it comes to clinic. Now, how to study is what I want to explain. Now, I most of the times I study from. See, it is that I was a very studious person in the college. Everybody knows. Though I was very naughty, but I was, when it comes to study, I used to study very hard. Okay, I have read almost all the books, chronic disease and all this, all the mathematics, including Dubey, Boric, Clark's, and Catherine Coulter, and Tyler, and Dr. Kent, and whatnot. Okay. I think I've read even Samuel Lilienthal. Then I had read even the combination book. The combination book I didn't find interesting at all, and biochemic books also I did not find much interesting, though it is very interesting. Bachelor remedies I did not find much interesting, so I did not really read that. Okay, first thing you have to find what are your interests, like what is your taste. See, my taste is more artistic. And it also has to have logic behind that. So mine is more art and science. Okay, if it is like something like ये दवाई काम करती है, अगर कोई डॉक्टर बोले ना कि सर दर्द में बेलाडोना काम करती है, ओके, एंड बैकएक में लीडम पाल काम करती है, तो मैं भैया उसको राम राम अल्लाह हाफिज, मेरे को वो नहीं जमता. आई नीड टू हैव सम रीजन बिहाइंड दैट. You need to have really good explanation behind that. Okay, some really good logic. Okay, you need to have a good logic for that. Okay, then I am convinced about reading the book. Otherwise मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, and then I थोड़ा थोड़ा पढ़ने फटाफट ये कर लेता हूँ, and then I see कि कुछ पढ़ लग रहा है क्या, कुछ लग रहा है क्या, नहीं तो खत्म, जिंदाबाद. Okay, I don't read the books. I did not find combination book interesting at all. Like, I did not find there are some protocols about cancer and things. I'm not going to take their name, but I did not find them interesting at all. Okay. Because it has helped me in a case, in another case, the patient eloped very fast. So I said, no, this is gambling, which I don't want to do. I don't like to gamble in the patients. Please don't do that. Yeah, I'm telling you, don't gamble. Okay, keep it simple. Don't gamble, because you are going to gamble with the life of the patient, and you are going to complicate the case for the next homeopath, even for yourself. If the patient keeps the faith in you and then he remains with you, then you are going to complicate that by gambling, by giving this and that, and कि इसने ये बोला है कि कैंसर में रूटा काम करती है, इन्होंने ये बोला है कि कैंसर में कालीमुर काम करती है, अमरकायोड काम करता है. डोंट डू दैट. तो व्हाट हैपेंस ना कि आपको पता है कि एक्चुअल डिसीज ऑफ द पेशेंट एंड द मेडिसिनल डिसीज दैट यू हैव कॉज्ड by proving, by giving higher potencies, already the patient's vitality in cancer is very low. Okay, so then you keep experimenting, that is wrong. Okay, don't do that, please. मतलब क्या होता है ना कि if you are not able to treat, don't mistreat, don't maltreat. है ना, क्या हो जाता है, आप you spoil it, and it costs the life of the patient. Please, because stakes are very high. Of course, you do not say no to any case. Please treat every disease. Whatever patient comes to you, treat them. Okay, treat every disease on the earth. Every case on the earth comes to you, you have to treat. First, try to understand. If you don't understand, discuss with us. But treat every case. Don't say that we do not have treatment for cancer. We do not have treatment for. Don't say that people will ask you, "Iska इलाज है क्या?" हाँ, उसके लिए treatment है. Use the word, yeah. We do have treatment for rheumatic arthritis, for arthritic nodosities. Use the word treatment. Don't use the word cure. Don't fall in the trap of the patient.
एंड रिलेटिव्स कि इसको कितने दिन में ठीक होगा वगैरह वगैरह, है ना। रिलीज आते हैं ना बहुत ज्यादा फास्फोरस होते हैं ना शाणे, कि सर आपने तो ऐसे पेशेंट देखे होंगे ना, कितना टाइम लगता होगा आपके तजुर्बे से, ऐसा बोलते हैं लोग आपको, फिर अपन वो ट्रैप में फंस जाते कि 3 महीना 6 महीना, देन यू आर गॉन। ओके, डोंट डू दैट। हाँ, यू शुड से कि देखते हैं आपकी बॉडी कैसे इसको रिस्पॉन्ड करती है। व्हाट यू शुड से कि देखते हैं आपकी बॉडी इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, देखते हैं। बट मुझे तो आशा है, मेरा एक्सपीरियंस और मेरी पढ़ाई बता रही है कि हाँ आपकी बॉडी इसको प्रतिसाद देगी, अच्छा इसको रिस्पॉन्ड देगी, ये मुझे लगता है। कितना समय लगेगा ये देखते हैं, इतनी जल्दी मेरे को बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं बताऊंगा कि कितना समय लग सकता है। ओके, इज इट ओके, इज इट कन्विंसिंग, डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? हेलो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now I'll come back to how to study. Okay. Now how to study. What I do is I take the single remedy rubric of every patient. Like I am if I am studying say aconite, तो मैं सिंगल रेमेडी रुब्रिक्स उसके निकालूंगा। सिंथेसिस में से कैसे निकालना है वो आपको बता देगा कोई भी। F5 प्रेस करो तो आपको सिंगल रेमेडी रुब्रिक पता चल जाते हैं, उसमें से वो F5 और उसका प्रोसेस है। तो सिंगल रेमेडी रुब्रिक को मैं पढ़ता हूँ, उसको लिख के निकालता हूँ। उसके बाद में वो रेमेडी 10 लोगों के साथ कितने रुब्रिक्स में, लेस देन 10, देन आई रीड दैट दोज रुब्रिक्स। ओके, मतलब इसके क्लोज कॉम्पिटिटर्स कौन है, समझ रहे हो ना। जैसे फियर बिट्रेयल के अंदर हाई समय से इग्नेशिया है, नेट्रमोर है, लैक्टेसिस है, आप समझ रहे हो ना। तो फिर मैं वो पढ़ता हूँ कि यार ये लेस देन 10 है बेलाडोना के साथ में। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नेट्रमोर, तो इसमें 7 रेमेडीज कम, बेलाडोना, हायोस, इग्नेशिया, लैक्टेसिस, लाइसिनम, नेट्रमोर एंड पेट्रारा। ओके, तो लेस देन 10 कि मतलब इसको ये बाकी के 6 लोग कंपटीशन में है। ओके, तो फिर whenever I get a case where I feel that this patient has fear betrayal, so I don't jump to hyosamus directly. Okay, I will see if there are other rubrics of other remedies also, like उसके अंदर evading look अगर है, अगर पेशेंट आपके साथ में नजर मिला के बात नहीं कर रहा है ना, या जब बात हो रही है कुछ अड़चन वाली बात हो रही है जहां पर पेशेंट को एम्बेरसमेंट हो रहा है, वहां पर फिर पेशेंट अगर आपसे नजर नहीं मिला रहा है, नजर चुरा रहा है, इधर उधर देख रहा है ना, तो फिर आई ट्राई टू थिंक ऑफ लाइक नाइट्रोमोर। इफ ही इज हाइडिंग देन आई ट्राई टू थिंक ऑफ इग्नेशिया, बेलाडोना। डू यू अंडरस्टैंड दिस? So this is why is this, because I know the rubric already and I know there are other remedies already in that rubric. ओके, हमारे दिमाग में क्या आया था, सर फियर बिट्रेल है, हाई समझ दे दो, सर ग्रीफ है, इग्नेशिया देखो। जैसे कल डॉक्टर वंदना ने किया था कि आई गेव द लेडी इग्नेशिया फर्स्ट, शी डिड दैट राइट, बट लेटर ऑन व्हेन शी रिपोर्टाइज्ड एंड देन शी सॉ कि अरे यार नो दिस इज आर्सेनिक। तो सच चांसेस आई डोंट टेक इवन इफ आई एम सो सीनियर। मतलब आप लोगों से ऐसा तो नहीं हो, 25 एक्सपीरियंस ऑफ 25 इयर्स इज नॉट वेरी सीनियर। सीनियर इज 50 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके कोई सीनियर बनता है। 60, 50, 55 साल का, 35, 40 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस हो तो ओके। बट स्टिल आई हैव नॉट फॉर्म्ड इमेजेस ऑफ रेमेडीज, मेन थिंग। ओके, आई डोंट फॉर्म इमेजेस ऑफ रेमेडीज, डोंट डू दैट। प्लीज रिमेंबर, नो मेकिंग, नो बीइंग प्रेजुडाइज्ड कि फास्फोरस ऐसा होगा, पल्सटिला ऐसी होगी। हाँ, बाय एंड लार्ज हो सकता है, इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज नॉट प्रूवन अगेन इन द प्रूविंग्स। Okay, these are observed things. What we share with you is we observe, that's not the rule, please remember that. Okay, तो इसीलिए ये ऑब्जर्व हुई चीजों को अल्टीमेट नहीं लेना है। हमारा अल्टीमेट क्या है, याद रखो कि प्रूविंग, ड्रग प्रूविंग में जो सिम्टम्स आए वो, उसके बाद में पॉइजनिंग में जो सिम्टम्स आए उसके वो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल में आए हुए रूब्रिक्स को भी हम ज्यादा नहीं देखते हैं, जो चीजें क्लिनिकली फाइंड आउट हुई है। जैसे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ये जो रूब्रिक है ना, ये ज्यादा क्लिनिकल रूब्रिक है। अगर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ये गैलेवर्डिन का रूब्रिक है ना, ये क्लिनिकल रूब्रिक है, ये प्रूविंग में से लिया हुआ रूब्रिक नहीं है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ज्यादा।
ओके, ये इमेज फॉर्म वाला रूब्रिक है, कैथरीन कुल्टीर और अपने इनका है, क्या कहते हैं उनको, गैलेवर्डीन साहब का रूब्रिक है। तो ये थोड़े से इसको हम लोग ये रूब्रिक को, हाँ सर सॉरी सर, कोणीतरी इथे ना कॉलचं साइन येत आहे काहीतरी, आय डोंट नो कोण काय करते का, त्याच्यात नंबर आहे आणि हाँ, कॉलचं साइन आहे, कौन है? पार्टिसिपेंट तिकडे ते येलो साइन आले, उसको उड़ा दो। हाँ, इट वॉज सम इंटरनेशनल कॉल ना, ठीक है। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ सर आ रही, Yes, sir. हाँ हाँ, वो ही मस्ट बी यूजिंग द वॉइस बाय कॉल या कुछ ऐसे आ जाते, पता नहीं अभी, वी आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग। एनीवेज, सो डोंट फॉर्म द इमेजेस ऑफ रेमेडीज। एक बेसिक थोड़ा सा रहने दो कि आपके दिमाग में पल्सटला थोड़ी माइल्ड रहेगी, सल्फर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल रहेगा, थोड़ा स्टाइल मारेगा, थोड़ा सा फ्लैटस करेगा। नाइट्रोमोर थोड़ी सी आपको डिग्निफाइड लग सकती है, नाइट्रोमोर इवेडिंग लुक रहेगी ज्यादातर। स्ट्रेमोनियम के अंदर फियर रहेगा, स्ट्रेमोनियम में प्राइड रहेगा। किसने ऑन किया है आवाज? संतोष यार, क्या करते हो तुम लोग यार? प्लीज बीच बीच में प्लीज ऑडियो मत ऑन करो बेटा, मेरे को डिस्टर्ब हो जाता है फ्लो में, ध्यान रखिए प्लीज। एनीवे, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक खाली एक जैसे हाई समझ थोड़ा सा टटोलेगा आपको। ओपीएम भी थोड़ा सा मतलब लेड बैक वाला रहेगा, आराम से होने दो ऐसा रहेगा। अरे भाई लोग, क्यों आप ऐसा करते हो? हेलो, ये कौन है लिनोवो? आप लोग प्लीज बीच बीच में थोड़ा सा यार सेंस रखो ना यार, मत बीच बीच में ये करो, क्योंकि मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, सीधी कान में आवाज आती है। एनीवेज, क्या यार, ओके, तो थोड़ा थोड़ा थोड़ी एक बेसिक इमेज रहने दो मन में ज्यादा, लेकिन वो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग आप एक्सक्लूसिव मत बनाओ कि दैट इज ओनली राइट, ये मत समझो आप। जो भी आपके मन में थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, जो भी एक इमेज के मन में पेशेंट की हो सकती है, रेमेडीज की हो सकती है, उसको रहने दो, लेकिन उसको अल्टीमेट मत बनाओ, ठीक है। दूसरा, जब हम रूब्रिक पढ़ रहे हैं, जब स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे मेन चीज का ये ध्यान रखो कि उसके क्लोजेस्ट रूब्रिक को आप जरूर पढ़ो। जैसे एफिमिनेट एक रूब्रिक है, उसका क्लोज रूब्रिक कोई बता सकता है क्या? हेलो, एक रूब्रिक है एफिमिनेट, हाँ बोलिए। हेलो, Feminine. फेमिनाइन नाम का रूब्रिक है क्या? हेलो, मर्फी में इट इज फेमिनाइन बट वो एफेमिनेट ही लेते हैं ना। हाँ सर, दो फेमिनाइन मर्फी में दिया है फेमिनाइन मेन, ऐसा रूब्रिक है मर्फी का। ओके, तो व्हाट अदर रूब्रिक which is close to effeminate, which you might mistake with effeminate? फेमिनाइन और इफेमिनाइन दोनों रूब्रिक है ना सर, तो दोनों में अगर दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। और बोलो हाँ, दोनों एक ही रूब्रिक है। डिफाइंड मैनिश लुकिंग वुमन नहीं बेटा, मेन एफिमिनेट मतलब मेन हु आर फेमिनाइन, रिफाइंड। exclusive एक्सक्लूसिव इज पॉसिबल, यस, ओके। और कॉक्वेटिश, ओके, फॉकिश नहीं, नहीं। एक एलिगेंस एक रूब्रिक आता है क्लोज टू एफेमिनेट, दैट्स आल्सो पॉसिबल, ओके। बट एलिगेंस में थोड़ा सा एक ग्रेस आएगा, है ना, वो ग्रेस आपको फीमेल की तरफ नहीं लेकर जाएगा। आप बोलो और कोई, और कोई बोलो विच इज वेरी क्लोजेस्ट टू दिस थिंग, एफेमिनेट। maternal instinct exaggerated Okay, very nice, very nice, but still you're right. कॉक्वेटिश नहीं हो सकता है, कॉक्वेटिश थोड़ा सा, लेकिन एक बहुत अच्छा रूब्रिक है। फापिश हो सकता है सर, फापिश, FOPPISH। नहीं सर, नॉट फॉपिश।
No. No. Some very close. Sir, refined? नाही बेटा. Refined. Okay. Refined मध्ये काय? Elegant दिलंय ना त्यांनी. Refined को उन्होंने cross reference दिया elegant. One rubric which comes very close to effeminate is too polite. Right? Polite, too polite. Hello. And one more rubric which I am expecting from you people is what? बोलो. क्या क्या होता है? What is feminine? Gentle. तो mild gentle हो जाता है ना बेटा. Mildness हो जाता है. Delicate. हाँ बेटा. Delicate. Delicate constitution. Delicate constitutions is a general rubric, ना I think. Yeah. But delicate constitutions का मतलब क्या है? What is delicate constitutions, Nishu? In terms of the makeup, na, like hair, eyes, nails, skin, that kind. Okay. Delicate मतलब नाजुक ना? हाँ. Okay, great, very nice, very very nice. Understood? Hello. Hello, आप लोगों को समझ में आया? Delicate. सुन रहे हैं, हाँ. Yes, yes. Delicate constitutions is the rubric I was expecting, which is very close to effeminate. There is one more rubric which is very close to delicate and effeminate. फीमेल्स में सेंसिटिविटी होती, कुछ भी मजाक करते हो तुम लोग? मैन नहीं होते क्या सेंसिटिव? मैं नहीं हो गया? सॉरी. हाँ अश्विनी. और एफिशिएंट? नहीं बेटा. बोलो. बहुत इजी है. बहुत इजी है. Weathercock. क्या है रुब्रिक? Weathercock. यार ये पाकिस्तान वाले ना ऐसे अजीब अजीब रुब्रिक लाते हैं और कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होते. In the sense they change, they have mood swings. What is the rubric? Mood swings. नहीं. Mood swings. अच्छा, that's the type of female you have seen in your life, huh? Tariq. Okay. नहीं तारिक भाई. I am asking something else, which is very close to effeminate and delicate constitutions. Come on, it's very easy. Delicacy feeling of. समझे? मैं परसों ही पढ़ा है ये, आप लोग अगर भूल गए कि मैं फाइटोलॉजी का पढ़ा रहा था जब मैं, है ना? वो डेलिकेसी फीलिंग ऑफ. ये लोग खुद को, इनके अंदर फीलिंग होता है कि मैं डेलिकेट हूं. हेलो. फिर उसके बिहेवियर में उस तरीके का, उसके रहन सहन में, चाल चलन में, बातों में, कपड़ों की स्टाइल में, खान पान में, है ना, उठने बैठने में, फिर ओढ़ने में, सोने में, नहाने में, थिंकिंग में, हेलो, उसकी टेस्ट में, कपड़ों की टेस्ट में, आर्ट की टेस्ट में, मूवीज की टेस्ट में, उसकी फिलॉसफी में भी, है ना, जिंदगी की तरफ देखने के नजरिए में भी थोड़ा सा वो एक सॉर्ट ऑफ जो हमको फेमिनाइन लगेगा, लेकिन वो डेलिकेट चीजें रहेगी. हेलो, डू यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हो ना? अभी थोड़ा सा डेलिकेसी फीलिंग वाले जो लोग होते ना, मैं उनको, हाँ, टू पोलाइट लिया ना बेटा, मैं डीडी बोला ना मैं, रंजीत, ये दीज आर क्लोज टू एफिमिनेट. आई एम नॉट differentiating between the rubrics. I am trying to tell you where we fall in the trap and how do we study. तो हमारे दिमाग में वो डेलिकेट बंदा रहता है, लेकिन हमारे दिमाग में एफिमिनेट रुब्रिक आ जाता है. क्यों? क्योंकि हमने एफिमिनेट रुब्रिक पढ़ा हुआ है. हमने डेलिकेसी फीलिंग ऑफ रुब्रिक को ध्यान ही नहीं दिया. हमने डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन रुब्रिक को ध्यान ही नहीं दिया. हमने टू पोलाइट को ध्यान ही नहीं दिया. आप समझ रहे हो? हमने एक्सक्लूसिव टू को ध्यान ही नहीं दिया.
फॉपिश भी किसी ने बोला तो हो सकता है, पॉसिबल है, बट रेयर पॉसिबिलिटी, यस, बट इट कम्स क्लोज टू फॉपिश. फॉपिश कम्स क्लोज टू दिस थिंग, कॉकवेटिश. ओके, फॉपिश कम्स क्लोज टू कॉकवेटिश और इम्प्रेशनेबल. इम्प्रेशनेबल के क्लोजेस्ट अगर कोई रूब्रिक है तो फॉपिश है, क्योंकि आप अमिताभ बच्चन का इंप्रेशन कैरी कर रहे हो, समझ रहे हो, आप गोविंदा का इंप्रेशन कैरी कर रहे हो, तो देन यू टेंड टू बिहेव इन अ फॉपिश वे, यू माइट बिहेव. लेकिन मैं फॉपिश कैसे समझता हूँ कि यार एक मौलाना है लेकिन दाढ़ी को लाल कलर किया हुआ है मस्त, मुंह में लाल पाने, बाल भी लाल बनाए हुए. एक प्रीस्ट है, उसके हाथ में घड़ी मस्त एकदम ऐसी रेड वाली घड़ी, फिर इधर वो अंगूठी, और वो जो क्रॉस भी पहनेंगे उसके अंदर भी अलग टाइप की डिजाइन आएगी. आप समझ रहे हो, उनकी जो यहाँ पे जो पॉकेट होता है उसको भी ऐसी बटन बटन लगा हुआ थोड़ा सा, समझ रहे हो. ये चीजों में मैं फॉपिश पकड़ लेता हूँ. या कोई गांव से लेडी आई है लेकिन सिंपल लग रही है, लेकिन उसके ब्लाउज का कलर, उसकी साड़ी का कलर, डिजाइन सेम है, उम्र मान लो 60 साल है, then I tend to think of the rubric foppish, which might feel like cockroach. You understand? Hello? Yes, Or sir. okay, okay. Now, who asked me to differentiate between polite and रंजीत ने क्या बोला? राजनीत ने बोला. आर्य कौन है? रंजीत आर्य कि राजनीत आर्य? रंजीत आर्य. रंजीत ने बोला है कि पोलाइट और क्या? डीडी व्हाट ही सेड? Effeminate, DD delicate constitution, DD polite. ओह, अरे बाप रे. तो मैं बताया ना, डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन तो आई एक्सप्लेन ना, कि उसकी रहन सहन में, बात में, फिलोसॉफी में, सोच में वो डेलिकेसी आएगी, वो एक फाइनरी आएगी, एक टेस्ट आएगी, जो कि थोड़ी सी आपको, जैसे मैंने देखा हो कि डेलिकेसी फीलिंग वाले लोग ज्यादातर फेमिनिस्ट होते हैं, ज्यादातर फेमिनिस्ट होते हैं. ऐसे लोग जल्दी ऑफेंड भी हो जाते हैं बातों से, उनको बुरा लग जाता है, वो जल्दी नाराज हो जाते हैं चीजों से. मतलब उनको आप फिर आप बोलेंगे डीडी सेंसिटिव टू रूडनेस कैसा है ना, तो अगेन डीडी सेंसिटिव टू रूडनेस आता है. सेंसिटिव वाला रूडनेस से क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएगा, बुरा मान जाएगा. बार बार अगर उसको रूडनेस बिहेवियर हुआ तो वो ही माइट गेट सिक. समझ रहे हो? डेलिकेसी वाला बात में नहीं, भैया मेरे को इस तरीके से मैं नहीं करूंगा बात ऐसी. रूडनेस वाले बोलेगा कि बात करने का एक तरीका होता है सर, ये ऐसी बात करते हैं जो दिल को लग जाती है. डेलिकेसी वाला उसके अंदर, बिहेवियर के अंदर, सेंसिटिव टू रूडनेस वाला जरूरी नहीं कि दूसरों के साथ रूडली बात नहीं करेगा, लेकिन डेलिकेसी वाला डेलिकेटली बिहेव करेगा. डेलिकेसी वाला बोलेगा कि मेरे को छोटी छोटी बातों से भी तकलीफ हो जाती है. डेलिकेसी वाले में फिजिकल चीज भी आ जाएगी कि नहीं सर, मैं वो फ्रिज की चीज खा लूं तो मेरे को तकलीफ हो जाती है, मैंने मिर्ची अगर खा ली तो मेरे को जुलाब हो जाते हैं. हेलो, तो आप सीधा एग्रीवेशन स्पाइसी की तरफ चले जाते हैं, हालांकि वो डेलिकेसी फीलिंग वाला रूब्रिक आता है. और डेलिकेसी वालों के अंदर थोड़ा सा नाजुक पना लगेगा आपको. हेलो, उसके आसपास वाले लोग ये वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, नाजुक. तो उनको मैं और एक चीज पेशेंट से पूछता हूँ कि आपको लोग क्या बोलते हैं कि आपका नेचर कैसा है. समझ रहे हो ना? एक दूसरा तरीका होता है पेशेंट को पूछने का, ये मत सर आपका मिजाज कैसा है. ये दूसरा, सर आपको लोग क्या बोलते हैं, आपकी वाइफ आपके बारे में क्या बोलती है, आपकी बहन आपके बारे में क्या बोलती है, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या बोलते हैं. जैसे अगर मान लो कि बच्चे हैं, स्कूल गोइंग, तो पूछो कि इसके टीचर इसके बारे में क्या बात करते हैं, इसकी बहन, बड़ी बहन क्या बात करती है, इसकी छोटी बहन क्या बात करती है, इसकी मामा इसके बारे में क्या बोलते हैं, है ना. तो यू हैव टू आस्क कि व्हाट पीपल स्पीक अबाउट यू, मतलब व्हाट इंप्रेशन दैट मैन इज गिविंग इन द पीपल, इन द सोसाइटी. आपके करीब वाले लोग क्या बोलते हैं, समझा? खरगोश, ओके. खरगोश थोड़ा सा स्विफ्ट होता है ना बेटा? हाँ, नाजुक होता है लेकिन स्विफ्ट होता है. वेरी गुड,
बहुत अच्छा है। तो खरगोश की रेमेडी क्या रहेगी? नाजुक और स्विफ्ट। लेकिन तो इसमें से स्विफ्ट कौन है डेलिकेसी वाले? टू पोलाइट एंड स्विफ्ट कौन है देख लो। खरगोश को तो हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या? हम लोग खरगोश बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फास्फोरस। ओके, हम लोग खरगोश को फास्फोरस बोलते हैं। पहले हम लोग ये बोलते थे क्योंकि एकदम प्यारा रहता है, व्हाइट रहता है, आंखें उसकी एक्सप्रेसिव रहती है, थोड़ा सा नॉटी रहता है, फट से किसके पास भी जाएगा, प्यार भी करेगा, लेकिन सिलेक्टेड लोगों के पास जाएगा, है ना। और ऐसा बहुत स्विफ्ट रहेगा, इधर उधर फटाफट फटाफट सबका दिल जीत लेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड खरगोश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेरी क्यूट। क्या बोलते हैं खरगोश को आप लोग? मेरे को नहीं पता, भूल गया मैं। Rabbit. रैबिट। रैबिट इज फाउंड वेरी क्यूट बाय ऑलमोस्ट, मतलब मेरे को कोई बंदा ऐसा नहीं मिला कि जिसको रैबिट पसंद नहीं आए, है ना। कोई है जिसको रैबिट पसंद नहीं है? अभी यहाँ पर 70-80 लोग हैं, कोई भी नहीं है, मेरे को लगता नहीं है रैबिट के। बिल्ली तो भी काफी लोगों को पसंद होती है, काफी लोगों को पसंद नहीं होती है, कुत्ते काफी लोगों को पसंद होते हैं, काफी लोगों को नहीं होते, लेकिन खरगोश अमूमन सबको बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है बाय इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स that aura that it carries, that sweetness that it carries, that those cute eyes, those expressive eyes of his that it carries. Okay, so what I said when studying is you have to DD the rubrics, but you have to remember that these rubrics come very close to each other. Then you have to find out which rubrics are to be used as an understanding rubric and which rubric are to be used as prescribing rubrics. Okay, ये भी चीजों को आपको ध्यान देना है। जैसे किसी केस में कौन सी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ये कैसे सब समझेगा आपको? बोलिए, आई वॉन्ट यू ऑल टू टॉक टू मी। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ बेटा। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हो, जिस प्रॉब्लम के लिए पेशेंट आया हमारे पास में कि वजह मतलब उसका कॉजेशन कि किस वजह से इसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो वो मेरी नजर में वो इम्पोर्टेंट रहता है, कॉजेशन। यस सर, ओके, वेरी इस गुड। कारण से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, वेरी गुड। तो मेंटेनिंग फैक्टर के लिए भी अपने को काम आता है कॉजेशन, है ना, कि वो कॉजेशन रिमूव हो रहा है या उस कॉजेशन के प्रति उस पेशेंट का बाद में आफ्टर रेमेडी किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, उस पर भी पता चलता है कि आपकी रेमेडी काम कर रही है कि नहीं कर रही। वेरी गुड। एलिमेंट्स फॉर्म इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर। ओके बेटा। और लेकिन कई बार क्या होता है ना कि एम्बिशन डिसीव्ड होता है लोगों में, कि अभी जैसे आपके पास ज्यादातर औरतें आएगी एंड देन दे विल से कि आप पूछते हो ना कि क्या करते हो, कुछ नहीं, हाउसवाइफ हूँ। तो कुछ नहीं हाउसवाइफ हूँ बोलने पर इसका मतलब क्या होता है कि हाउसवाइफ रहना उसके लिए कुछ नहीं है, मतलब शी इज नॉट हैप्पी with the thing she's doing, or she's feeling that she should have been something else apart from being housewife. Okay, but एलिमेंट्स ऑफ एम्बिशन रिसीव्ड में बहुत कम रेमेडीज है, लेकिन लोग बोलते हैं अब क्या कर सकते हैं, अब मैं 40 की हो गई हूँ, अब मैं 45 की हो गई हूँ, अब क्या, वो चला गया, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया जो भी है उसको अभी। तो यहाँ पर आप क्या लोगे? क्या आप यहाँ पर ये लोगे, एम्बिशन रिसीव्ड ये चीज लोगे? सर एंडिंग डिस्पोजिशन लेंगे क्या? नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। इसी ऐसी केस में क्या आप कॉजेशन को वैल्यू दोगे? नहीं, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया परिस्थिति को कि जैसे मेरे बच्चे छोटे थे, घर में कोई नहीं था, तो मुझे जॉब छोड़ के रहना पड़ा उनके लिए, तो शी एक्सेप्टेड दैट। अगर वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर रही है और बोलते कि अभी मुझे उससे नहीं प्रॉब्लम है, नहीं, हैप्पीली हैप्पी नहीं है। मैं बोला ना कि क्या करते हो आप, कुछ नहीं, हाउसवाइफ हो। तो कुछ नहीं वर्ड है, मतलब शी इज नॉट हैप्पी अंदर से। अच्छा अच्छा, तो डिसअपॉइंटमेंट लेंगे, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंट। कैसे? किसने अपेक्षा भंग किया उसका? डिसअपॉइंट मतलब अपेक्षा भंग होना। किसने किया? उसने किसने उसकी किया? अपेक्षा थी कि मैंने अभी इतना एजुकेशन दिया, मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी, तो वो अपेक्षा भंग हो गई। मतलब उसको जॉब करने को नहीं मिला किसी भी वजह से, तो उसकी अपेक्षा भंग हो गई।
ओके, ठीक है, ले सकते हैं? पॉसिबल है, हाँ। तो यहाँ पर कॉजेशन को इम्पोर्टेंस आप फिर भी दे रहे हो, है ना? आप एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट ले रहे हो ना? हाँ। तो मतलब आप अभी भी कॉजेशन को इम्पोर्टेंस दे ही रहे हो। समझ रहे हो ना आप क्या कर रहे हो? By हाँ, doing this, you are giving again importance to causation. My question is whether you will consider causative factor as important here still and worth taking the rubric, or you will think of something else. सर मे बी वी शुड नॉट कंसिडर इट, क्योंकि हमने डायरेक्टली उनको पूछा कि आप क्या करते हो, तभी उनका जवाब आया कि नहीं मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। बट आपको बीमारी कब से स्टार्ट हुई है, अगर उसका और आप क्या करते हो इसका अगर रिलेशन रहेगा तो वी विल कंसिडर, अदरवाइज वी शुड नॉट कंसिडर इट। अगर वो काफ़ी दिनों से हाउस वाइफ है एंड अभी उनका एलिमेंट कुछ 1 महीने से स्टार्ट हुआ है, तो 1 महीने पहले क्या हुआ था, दैट शुड बी द कॉजेटिव चलो, फैक्टर। the lady has thyroid now. Okay, now what? अच्छा, श्रीकांत बोल रहा है वही कंसर्न एडेप्टेशन एंड रिएक्शन, वो वाला। ओके, बोलो। The lady has thyroid. सो व्हेन वाज इट डिटेक्टेड, कब से है एंड कैसे स्टार्ट, Detected 2 months back. एंड कब से आप हाउस, मतलब शादी को कितना साल हुआ, आप घर पे कब से हो? Age is 40. The lady got married at the age of 19. She got married at the age of 19 and now she has developed thyroid. सो मे बी इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट सर, क्योंकि I'm asking you whether will you consider नो आई विल नॉट in this case. कंसिडर इट। In this case, then what will you consider in this case? सर व्हाट आर द थॉट प्रोसेस, उनको दिन भर में क्या सोच आते हैं, क्या विचार आते हैं? इफ़ शी इज स्टिल ब्रूडिंग ऑन इट कि मैंने कुछ करना है तो कंसिडर करेंगे, अगर नहीं है, उसका कंसर्न ही अलग है, तो नहीं कंसिडर करेंगे। थायराइड में क्या कंसर्न है? अब बीमारी मिल गई, मुझे पता चला कि होम्योपैथी लेना चाहिए, मैं इसलिए आई। नहीं, दवाई अपार्ट ले फ्रॉम रही हूँ। थायराइड सर, अपार्ट See, फ्रॉम now थायराइड। I'm talking to you about a specific case. I'm Yes, talking to sir. you a case. This case now. What will you take then? How will you proceed in the case taking, or how will you proceed in? What is the purpose of case taking? To Here, understand. What? To understand the patient, his psychodynamics, like how his Right, body and mind are Very affecting good. his disease condition. हाँ, so that is what I'm asking, na beta. A purpose of case taking is to understand the person, right? The sick. Yes, sir. Simple, na? Yes, sir. The very process is to understand what Dr. Hahnemann has said is treat the sick, not the sickness, Person. right? Yes, The sir. sick, not the person, the sick. Now, in this case, this is so-called one-sided case. No, a case she will say, नहीं सर नहीं अच्छा है, मैं घर में रहती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, हस्बैंड आते हैं, I'm good. सास ससुर नहीं है, हम दोनों हैं, 2 बच्चे हैं, बच्चे अभी बड़े हो गए, बेटा अभी इसमें है, बेटी 12th हो गई, बेटी की अभी शादी करनी है, बेटा जॉब पे लग जाएगा 2 साल बाद. These are the commonest presentations, right, about Yes, thyroid. sir. Yes, sir. Very Yes, sir. common presentation about thyroid. So maybe Now she is what? not able to voice out her feelings or something which No, is. everything is fine. My husband is working in company. He earns around 25-30,000. Now what? Don't know, sir. That is where we fall in the trap, beta. Yes, sir. This is where we fail. Now what to consider? Sir, causative Now, is important in acute cases. what is in acute cases? It is most important. In chronic cases, also it is important, beta. Causative factor is important always, but what we have to see is the reaction of the patient to the causative factor. Yes. Whether it is acute or whether it is chronic. The causative factor is not important. The cause is not important. Now, the reaction of the patient is very important, and why is that reaction is also important. It is not the cause. It is the effect of the cause that makes you sick. Right? It is not the cause that makes you sick. Please remember. It is the effect of the causative factor on the person that makes him sick. And there is a reason
why that effect has occurred on that particular person. Okay. Q, now that why will lead you to the person, and the effect will give his reaction. Do you understand? The effect is the reaction, and the reason for the effect will be the person, his life, his philosophy, his way of living, his way of looking at the life, his way of reacting to particular situation. Okay. Okay. कोई भी चीज का कारण जो होता है ना, वो उसको बीमार नहीं करता, वो कारण के वजह से वो बंदे पर जो परिणाम हो रहा है ना, वो परिणाम हमको बीमार करता है. जैसे कि आपने किसी ने किसको गाली दे दी, तो किसी बंदे को दिल को लग गया. कोई बोलता है किसी ने उसको गाली को रिटर्न गाली दे दी, फिर भी बीमार पड़ गया. किसी ने गाली दी, ये गुस्से में आ गया, लाल बबूला हो गया, मार दिया. किसने गाली दी, बोला है चल कुत्ते चल, मेरे को ध्यान नहीं देना है, मैं निकल गया. कोई बंदा बोलेगा अरे यार इसकी गाली को क्या जवाब देना है, चलो निकल जाओ. उसमें अपने क्या फर्क रह जाएगा. लेकिन असर सब पर हुआ है, असर सब पर हुआ है, और ये असर क्यों हुआ है ये हमको पर्सन की तरफ लेके जाएगा. किसने गाली दिया और एक ऐसा देख के निकल गया, एक बोलेगा तेरे को बाद में देखता हूँ, बाद में देखता हूँ बेटा. मेरे जैसा बंदा बोलेगा बेटा अभी मेरे को पेशेंट है, छोड़ नहीं तो तेरे को दिखा दिया होता, तेरी क्या औकात है. समझ रहे हो, ये मेरे को पेशेंट ज्यादा जरूरी है. कोई बंदा जाके उसको दो ठोक देगा पटाख से, पकड़ के उसका गला पकड़ लेगा. एक बंदा बताएगा कि मैं कौन हूं, तो जानता है तो किससे बात कर रहा है साले. तो ये उस पर्सन की तरफ लेकर जाएगा आपको. तो आपके मन पर क्या इफेक्ट हो रहा है. आप बोलते हैं अरे भाई ये चीज को आप ईगो पे क्यों लेके जा रहे हैं, मैं तो सादी बात कर रहा हूँ, मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ, आप ईगो पे क्यों लेकर जा रहे हो. हेलो. तो वो जो असर उस बंदे पर हो रहा है, वो असर हमको उस बंदे तक लेकर जाएगा, है ना. तो हम लोग पूछते हैं पेशेंट को कि चलो ठीक है, क्यों क्यों बोला आप हाउसवाइफ हो, क्या आप हाउसवाइफ बोल के ये नहीं हो, आप क्या करना चाहते थे. फिर वो बोलती नहीं जाने दो डॉक्टर साहब, क्या रखा है उसके अंदर, नहीं नहीं बोलिए ना. तो फिर वो बोलेगी नहीं मेरे को इंडिपेंडेंट होना था, खुद के पैर पे खड़ा रहना था. फिर हम ये पूछेंगे कि क्यों आपको इंडिपेंडेंट होना था. ओके. फिर वो बोलेगी नहीं कुछ नहीं सर, खुद के पैर पे खड़ा होना चाहिए ना, मंजूर है, लेकिन क्यों. कोई लोग बोलते नहीं आपको जरूरत नहीं है, वैसे पैसे वैसे तो मिल जाते, फिर क्यों मैं काम करूं. तो उसके लिए क्या था कि पैसे की सिक्योरिटी के लिए उसको इंडिपेंडेंट होना था. कोई बंदा बोलता नहीं मैंने बचपन से देखा हुआ है कि मेरी माँ को इंडिपेंडेंट नहीं होने की वजह से क्या सफर करना पड़ा है. डू यू अंडरस्टैंड. देन वी रीच टू द पर्सन. कोई बोलता नहीं मेरे को किसी मदद क्यों मांगेंगे ना बंदा, मेरे में इतना टैलेंट है सब है, तो मैं क्यों मांगू किसी से मदद. कोई बंदा बोलेगा बेनेवोलेंट वाला कि नहीं सर पैसा तो आ रहा है, लेकिन एक आत्मसम्मान भी चीज होती है, और सर मैं पैसा कमाऊं तो मैं 4 लोगों के काम भी आ सकूं. आप में ये समझ रहा है ना, ये जो एंगल ऑफ विजन है ना, दृष्टिकोण जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये आपको बनाता है. जैसे एक बार रजनीश साहब से एक गांव गए रजनीश जी, तो उन्होंने देखा कि एक गांव है, वहां पर एक फैक्ट्री है, और वहां पर 250-300 लोगों की बस्ती है, 300-400 घर उसको मकानात दिख गए उनको, सॉरी. तो वो ऐसे ही बात कर रहे थे, तो एक बंदे से उन्होंने पूछा, उसके साथ जो उनका जो था, उनके साथ में जो बंदा चल रहा था, उससे पूछा, तो बंदे ने बताया कि सर ये जो फैक्ट्री वाला मालिक है ना, ये 300 लोगों का शोषण करके पैसा कमा रहा है. ओके. ये 300 घरों का शोषण करके पैसा कमा रहा है. रजनीश साहब ने क्या बोला कि आप इसको इस तरीके की क्यों नहीं देख रहे हो कि इसने 300 लोगों को रोजगार दिया है. हेलो. सही है ना. सही है, देखने का तरीका दोनों का अलग है. तो ये दृष्टिकोण जो रहेगा ना, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, वो आपको बीमार करेगा, या आपको जो भी करे. दोनों भी बीमार पड़ने वाले हैं, रजनीश साहब भी बीमार पड़ने वाले हैं, और जो बंदा उनके साथ में था. अरे प्लीज म्यूट कर गया सर्वांना. अनिता हो सर, थोड़ा परत चाललंय unmute गप्पा. करता. तू म्यूट कर सर्वांना.
श्रेया से चाल रहे थे, श्रेया बुगड़े। प्लीज आप लोग जरा ध्यान रखें बीच में। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा आपकी गप्पे समझने को, लेकिन ये सब यूट्यूब पे जाने वाला है, आप लोगों की बातें लोगों तक जाएंगी, है ना। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं सुनने में आपकी बात, ठीक है ना। तो प्लीज रिमेम्बर दिस कॉज इफेक्ट इवन इन द acute, even in the acute, this is the same thing that is going to happen, whether it is chronic or whether it's acute. Now in chronic, what Dr. Hahnemann has said, don't take the rubric ailments from ambition deceived. Okay, what Dr. Hahnemann has said, ki ailments from rubrics will be seldom used. तब तो वो फिजिकल भी लेते थे, ठंडा पानी पीने से गला बैठ गया, लेकिन ठंडा पानी पीने के बाद से जो गला बैठा हुआ है डॉक्टर साहब मेरा, वो ठीक ही नहीं हो रहा है ना। यहां तक कि फिर मेरे को अभी गले का कैंसर हो गया या जो भी हो गया, ये क्रॉनिक मुझे फेरेंजाइटिस बोल दो हो गया। तो यहाँ पर वो ठंडा पानी इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। ये है कि इतना सा ठंडा पानी पीने के बाद में ये बंदा इतने दूर तक के बीमार है। मतलब एक गाली किसी ने दे दी या किसी ने एक बात ऐसी बोल दी, सर मेरे वाइफ ने ऐसी बात बोल दी ना सर, ससुराल वालों ने, तो अपन बोलते ना कि क्या यार तू क्या उस बात को लेकर, तो अपन बोलते हैं ना कि यार क्या उस बात को पकड़ के बैठा हुआ है तू। आप समझ रहे हो कॉज इफेक्ट, क्या तेरे साले ने एक बात जो बोल दिया तो क्या तू, नहीं सर बात मन को लग गई सर, मन को लग गई सर बात, ऐसी बात बोल दी उन्होंने कि उसके बाद में ये बंदे को हार्ट का प्रॉब्लम चालू हो गया, धीरे 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 हार्ट का प्रॉब्लम चालू हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो नाउ हियर द कॉज क्या क्यों हुआ, फिर पूछेंगे हमने ये बात बोलने पर। सर क्या बताए, इनके पास में खाने के वादे थे सर, ऐसी हाल में इनकी बहन से मैं शादी किया हूँ, इनको सबको मैंने बड़ा किया सर, पाल पोस कर, मैंने अपने घर वालों को नहीं देखा, इन पे ध्यान दिया, इन पे दया किया। सो दिस कॉज विल लीड यू टू द रीजन बिहाइंड दैट। हेलो, सो देन that gali is not important, his feelings that got hurt is important. Hello, am I digestible? If Yes, not sir. digestible, at least little palatable. थोड़ा सा बदहजमी नहीं होगी नहीं मेरी बातों से? नहीं, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो इन चीजों को, इसको हम लोग नुआंसेस बोलते हैं। NU क्या स्पेलिंग होगा, NUIANCES, नुआंसेस। ये जो बारीकियां होती है ना, मेरा एक शेर याद रखना, मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लगता है प्यार में थोड़ी सी कमी रही होगी, लगता है प्यार में थोड़ी सी कमी रही होगी, मगर मेरे दोस्त प्यार में थोड़ी कमी भी थोड़ी नहीं होती। इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे कि लगता है केस टेकिंग में थोड़ी कमी रही होगी, लेकिन केस अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी कमी भी थोड़ी नहीं होती है। समझ रहे हो ना? ये फाइन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, थोड़ा आप पेशेंट के साथ में। और हाँ, मेरा तरीका ये है कि आई एम वेरी कैजुअल विद द पेशेंट। अभी आप देखो, अभी मैं टी शर्ट में हूँ, अमूमन गर्मियों में टी शर्ट में रहता हूँ, शाम में तो मेरा ड्रेस कोड ये होता है कि मैं आई एम इन द टी शर्ट एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड एज ट्रैक पैंट एंड ट्रैक शूज। इवनिंग माय ड्रेस कोड इज दैट। आई एम least bothered about this thing. Okay, but of course that is after a while, not the initial days of my practice. I could not afford doing that. I had to wear white shirt and all that stuff. Now I don't need to. But my way of dealing with the patient hasn't changed a bit. Even when I was in the college, Manisha madam knows me. I am the same boy. Still, I have a boy in me, mashallah, and I will be that. I hope I remain that. I would love to be what I am actually. Okay, so be confident. Second, you have to, आपकी कुर्सी पेशेंट की कुर्सी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। मतलब ये है कि you have to be the boss there in the clinic. Don't let the patients rule you. Why I am saying you this? Because then it will affect your prescriptions.
Not that it is your ego, not that the patient is smaller than you. No ways, you are great and he's small. No, it is because your decision will change. You will be pressurized by the decisions, by their talks. That is wrong. Okay, don't get influenced by the people around the patients. Don't fall in their traps. If they are again and again poking in between, you have to tell them कि भाई मेरे को इनसे थोड़ा एक 5 मिनट चैन से बात कर लेता हूँ, फिर आपसे मैं सब चीजें जानना चाहूंगा, प्लीज आप थोड़ा कॉपरेट कीजिए, ऐसा बोल के उनको थोड़ा सा हटा दो. ठीक है, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक रहने की जरूरत नहीं है. जो आपको उस वक्त मन में फीलिंग आए वो आप डायरेक्टली पूछ लो. पेशेंट, if the patient has cried in between, after the patient gets settled a little bit, you can ask कि why did you cry. अगर आपको नहीं समझ में आया कि पेशेंट क्यों रोया है, तो you have to ask. Don't feel small to ask anything to the patient. Do not. You can ask them. Okay, what patient expect from us is that you should understand his disease and then you should be able to treat him. That's what they expect. They don't expect much from you. Some people, patients' relatives, they expect them to be like, treated like उनका समाधान करो वगैरह, वो सब चीजें की जरूरत नहीं होती है. What is the patient expecting from you is that you should understand him and you have to explain him why you are asking the question. You have to ask him कि भाई देखो कुछ सवालात है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं पूछना चाहूंगा, अगर आपने जवाब दिए तो मेरे लिए बहुत आसान होगा आपको ट्रीटमेंट करने के लिए. इतना सिंपल. तो उस पर भी पेशेंट का रिएक्शन आता, क्या करना है सर, छोड़ो ना, ये तकलीफ है, ये मुझे दवाई दे दो, बस खत्म करो. देन दिस इज what is this? Hello. Talking business. Yeah, this is talking business. This is OPM. क्या रूब्रिक है वो, आपको मैं बताया हूँ. ओपीएम का एक रूब्रिक में पढ़ाया हूँ. ज्यादा बकबक नहीं अच्छी लगती उसको, काम की बात वो है ना. क्या रूब्रिक है वो, टॉक समथिंग है वो, आप देख लेना. उसमें ओपीएम स्टेट. ओपीएम 2 स्टेट में होता है. एक ये कि टिमिडिटी ने ट्रांजैक्टिंग बिजनेस, और उसके अपोजिट एक रूब्रिक है टॉकिंग टर्स. एक रूब्रिक है टॉकिंग टर्स, TRSE, स्पीच टर्स, सॉरी काम पूरते बात. स्पीच टर्स. Speech टर्स, बराबर. टर्स टू द पॉइंट. ओपीएम, उसमें ओपीएम है. और नाउ ओपीएम स्पीच टर्स का एक DD रूब्रिक है एग्जैक्टिंग टू. एग्जैक्टिंग टू में वो आपको एग्जैक्ट करा के बताएगा, और स्पीच टर्स के अंदर काम का, नहीं सर इसके लिए आया हूं मैं, ये दो ना, बाकी से कुछ नहीं मेरे को. समझा? वो कल के केस में था एग्जैक्टिंग टू आर्सेनिक का 75% कम हो गया. नहीं वो एग्जैक्ट नहीं दैट इज टॉकिंग बिजनेस. दैट्स नॉट नहीं. एग्जैक्टिंग टू मतलब तुला बाकी से काय करायचं हे दे ना औषध तू, ये वाला फील रहेगा. समझा क्या? हाँ, मतलब मन में आपको फील होगा यार ये अपने को ये करा. सर देखो मैं आपके पास में सिर्फ सर्दी के लिए आया हूँ, बाकी बीमारी जाने दो, बाकी बाद में देखेंगे. समझा? बस यही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है मेरे को. इट इज एग्जैक्टिंग टू. बस यही प्रॉब्लम के लिए मैं आपके पास आया हूँ. ऐसे एग्जैक्टिंग टू वो बाद में अपन समझेंगे रूब्रिक्स को, लेकिन मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो ये चीजें हैं. ठीक है? वो आई थिंक दिस इज ओके फॉर टुडे. कितना टाइम हुआ बेटा प्रणीता? 1 घंटा हो गया? 50 minutes. अच्छा ठीक है. तो ओके, नाउ व्हेन स्टडीइंग you have to make a group of friends. Okay, and in the friends you should discuss things. Second, don't use technical words with the patients. पेशेंट के साथ में कॉमन लैंग्वेज के अंदर जितना आप समझोगे उतना आप टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर नहीं समझ पाओगे. ओके, जैसे फ्लैटस पासिंग का मैं पढ़ाया अभी बच्चों को उस दिन कि फ्लैटस पासिंग गैबलेट्स के अंदर क्या क्या कैल्कियर और सल्फर है, मतलब ये बीच में पचक देता है ना. मैं बताया ना वो फ्लैटस पासिंग गैबलेट, एलियम सिपा कैल्किरिया और सल्फर है उसके अंदर. तो ये क्या है, व्हाट इज फ्लैटस पासिंग गैबलेट्स इन माइंड? इट्स अ कॉमन वर्ड ना. फ्लैटस पास करना है माइंड के अंदर कहाँ से आएगा? तो अपन किस किस को चिढ़ा देना, यहाँ पादरे आए हम मदद पचकन का ही बोलते हो, हेलो बोलते ना, ये बीच में कुछ भी पचक देगा. आप कपिल शर्मा के अंदर देखा करो रिएक्शंस, ये बीच में कुछ भी पचक देगा. तो ये दीज आर द स्लैंग्स दैट आई यूज मोर देन द टेक्निकल वर्ड्स. ओके, लाइक मोर देन कॉन्शियस. जैसे ऐसी बहुत भारी भारी लफ्ज है ना कि कंसायंस वगैरह वगैरह, इससे ज्यादा मैं कॉमन मतलब मैं भाई तेको आपण मराठी बोलतो जनाची मनाची लाज नाही वाटली का तुला?
ये कंसाइंस हो गया ना? हेलो, यस सर। समझ में आया ना? एंजाइटी कॉन्शियस में, यार तेरा कॉन्शियस तेरे को गवारा नहीं दिया क्या? ऐसा बोलने के बजाय साले देखो, हम लोग मराठी में बोलते तुला जनाची नहीं तो मनाची लाज नहीं वाटली का? हेलो, आप समझ में आ रहा है? ये समझना बहुत इजी हो जाता है। आप बेटा रंजीत में समझा दूंगा आपको बाद में। हेलो, सर आपको प्लीज। जन की नहीं तो मन की शर्म नहीं है? आप बोलते हैं ना जन मतलब लोग ना, जन की नहीं तो मन की लाज नहीं है कि तेरे को, ऐसा बोलते हैं ना अपन किसी को। तेरे को जरा भी शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? हेलो, दिस इज अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द पेशेंट। मतलब लोगों का छोड़ो, तेरा मन कैसे हो रहा है यार? इतने लोग मर रहे हैं और तू बोल रहा है अ, कि अभी ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी ऑक्सीजन देना। ऐसा अपन बोलते हैं ना, जैसे कोविड के टाइम को चल रहा था, स्टेट्स और सेंटर का जो झगड़ा चल रहा था, कि तो लोग अपन बोलते हैं ना कि अभी किसी कोई स्टेटमेंट आया था किसी मिनिस्टर का कि शी वाज टेलिंग कि प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो हम लोग मन में क्या बोलते हैं, अरे यार वो छोड़ो जिम्मेदारी का, आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई कि लोग मर रहे हैं और आपने हेल्प करनी चाहिए? हेलो, थोड़ी भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है, ऐसा बोलते हैं। इंसानियत तो बहुत दूर गया है। अपन तो अपने जैसे लोग बोलेंगे तुमको शर्म नहीं आ रही ये बात बोलते हुए कि यार ऑक्सीजन देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? आपने दिए होते तो क्या फर्क पड़ा होता? आपने मिलिट्री अगर आर्मी अगर एम्प्लॉय कर दी होती और आपने ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां लगा दी होती तो क्या फर्क पड़ा होता? वैसे भी आपकी आर्मी अंदर ही पड़ी हुई थी। कौन सा दूसरे कंट्री ने आप पर हमला कर दिया था? जो आर्मी आपकी अंदर ट्रेनिंग ले रही थी, उनको लगा के आप ऑक्सीजन के प्लांट खड़े कर सकते थे फटाफट। कॉमन सेंस है ना? हेलो, तो दिस इज कंसाइंस। मन गवारा नहीं दिया। देख, मैं वही बोल रहा सीमा, ये जो इतने भारी भारी अल्फाज नहीं यूज करता हूं मैं, तू समझ रही क्या सीमा? बेटा, सीमा बेटे, समझ में आया जी क्या? जी ये जी। इतने भारी भारी अल्फाज नहीं यूज करता हूं मैं समझने के लिए। समझी क्या बेटा? समझने के लिए जो ना मैं एकदम गाली, गाली नुमा, नॉट गाली बट उस तरीके के स्लैंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो वर्ड्स को हम ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। उससे क्या हो जाता है ना, आपको दोस्तों की बातें याद आती है। ए यार कल के सब बात मत देना, क्या आ जाना टाइम पे? आ क्या ऐसी बातें सुनी है ना बॉयज ने? हेलो, फिर से ना तो एन वक्त पे ये पचक देता है यार, ये नहीं आता है यार, ये एन वक्त पे पचक देता है। समझ रहे हो ना? तो ये दीज आर द थिंग्स दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड द रूब्रिक टू द कोर। these are the words, these are the words that will make you understand the rubric to the core। उसका पूरा फीलिंग आ जाएगा। मतलब अभी एक इलाइट क्लास वाला किस तरह से बात करेगा, एक मिडिल क्लास वाला कैसे बात करेगा, एक लोअर मिडिल वाला कैसे करेगा, एक बंदा फ्रस्ट्रेशन में क्या बात करेगा। हेलो, समझ रहे हो ना कि एक बंदा फ्रस्ट्रेशन में क्या बात कर रहा है ना? जैसे अभी डिफेंड करने के लिए पॉलिटिकली एक दूसरे को डिफेंड करते हैं ना लोग, कि अभी किसी ने बोला कि यार रेलवे प्राइवेट हो रही है यार, अभी गरीबों का क्या होगा, तो दूसरे पार्टी वाला क्या बोलेगा, रेलवे प्राइवेट होने से लोगों को सर्विस मिलेगी। अभी रेलवे में क्या सर्विस चाहते हो भाई? मेरे को यहाँ से बम्बई जाना है 2 घंटा, मैं क्या चाहता हूँ कि कोई अच्छी सी एयर होस्टेस आके मेरे को नाश्ता दे? यार मेरे को काम पे जाना है यहाँ से बॉम्बे, मेरे को क्या करना है सर्विस? और सर्विस के लिए तो राजधानी रेल एक्सप्रेस तो ऑलरेडी चल रही है पिछले 50 साल से। बट दोनों के अंदर की बातें कैसी है? एक बोलेंगे यार अभी गरीबों का क्या होगा यार, प्राइवेट कर दिया तो। बॉम्बे वाले बोलेंगे अगर लोकल्स का क्या होगा यार, हम लोग को तो 200 रुपए में पास मिलता, प्राइवेट होने पर वही 1000 रुपए का मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे? तो एक बंदा जो गरीबों की सोच रहा है उसका रूब्रिक आएगा सिंपैथेटिक, उसका रूब्रिक आएगा इंजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। और दूसरा जो सपोर्ट कर रहा है उसका रूब्रिक क्या आएगा? बिजनेस टैक्स। नहीं, सर्विस मिलेगी, मतलब वो उसको डिफेंड कर रहा है, सर्विस मिलेगी, है ना? मतलब उसका रूब्रिक ईगो की तरफ जाएगा, उसका रूब्रिक कन्फर्मिस्ट की तरफ जाएगा, है ना? कि आम लोगों का सोचे बगैर नहीं बाबा, वी आर स्पेशल, हम लोग अपना देखेंगे। तो वो ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज की तरफ जा सकता है कि नहीं हमको सर्विस चाहिए। क्या सर्विस चाहिए तुमको रेलवे में? क्लीन टॉयलेट चाहिए सिर्फ ना, वो तो हर स्टेशन में जाके पानी में डाल के करते हैं। वैसे भी तुम्हारी पैसेंजर ट्रेन में कौन से आपको क्लीन टॉयलेट होते हैं? और कहाँ पर जाकर देखो, बड़े बड़े मॉल्स में भी आप जाके देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल में टॉयलेट हमेशा अच्छे होते हैं क्या? कुछ नहीं होता है। आपके आइडिया के रूम, आप
पेट्रोल पंप पे चल जाए, प्राइवेट ही है, वहां के टॉयलेट साफ होते हैं क्या? नहीं होते। आप जाकर देखो, पेट्रोल पंप के टॉयलेट में जाना मतलब मर जाना। आप समझ रहे हो ना? तो ये लेकिन डिफेंड कर रहा है बंदा। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए कोशिश करते हैं कि बंदा कौन सी बात को किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो प्लीज रिमेम्बर दिस कॉज इफेक्ट एंड व्हाई. Okay, about this. Next time, inshallah, we will discuss more. I will try to be there. Okay, in the next series, I will try to cover more points. Okay, and yes, please do read the psychodynamics. उसको क्या कहते हैं, जो लुई है की किताब है, उसके अंदर उन्होंने, लुई है मैडम ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कौन सी बीमारी के पीछे क्या माइंड सेट होता है पेशेंट का, जिसके कारण ये बीमार पड़ा है। जीएनएम आप जरूर पढ़िएगा, जरूर बिल्कुल पढ़ो। जर्मनियन न्यू मेडिसिन के अंदर जो उन्होंने बोला है, रीजंस तो दिए हैं उन्होंने बीमारी के पीछे पड़ने के, उससे आपको केस टेकिंग बहुत आसान हो जाती है। कि जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर क्यों होता है, किडनी फेलियर क्यों हुआ। आपने कभी सोचा कि सुषमा स्वराज जी या फिर अपने अरुण जेटली साहब या फिर वो अमर सिंह जी, इनको किडनी फेलियर क्यों हुआ और इनका किडनी रिप्लेसमेंट करने के बावजूद भी ये लोग क्यों गुजर गए? कभी सोचा आपने कि इतनी हायर पोजीशन पे इनको कैसे जैसे पावर में होने के बाद भी इनको किडनी फेलियर क्यों हुआ? तब आपको पता चलता है कि जब आप जीएनएम पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि यार किडनी फेलियर मतलब फिश आउट ऑफ द वाटर, जल बिन मछली, मतलब डिसीजन मेकिंग से आपको निकाल दिया है। यू आर देयर ओनली एज अ पपेट, यू आर नॉट इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। ओके, देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अरे क्यों ये बीमार पड़े हो गए। अच्छा, मतलब ये डिसीजन मेकिंग में इनको कुछ नहीं है, इनको सिर्फ नाम के लिए रखा गया है। फिर उससे आप उनको लेके कि सर मैंने इस पार्टी के लिए इतना दिया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो शायद ऐसा बोलते हैं, जो भी है, कि मैंने इस घर के लिए इतना किया है सर, और आज ये लोग डिसीजन ले लेते हैं इनकी बेटियों की शादियों का, इनका घर बांधने का, जमीन बेचने का, ये ले रहे। मेरे को एक क्लब से पूछा भी नहीं सर। समझे ना? क्यों आपको पता चला ये? क्यों आपको? क्योंकि उसके पीछे का साइकोडायनामिक्स पता चला। ठीक है, तो आप जरूर ये भी पढ़िएगा। ओके, so थैंक यू। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन एंड आई विल बी देयर। मैं लेक्चर सीरीज में फिर से आपको जरूर पढ़ाऊंगा कुछ। ओके, थैंक यू। आपके फीडबैक्स डालिएगा और कुछ क्वेश्चंस हो गए तो जरूर डालिएगा, मैं फिर से आके आपको पढ़ाऊंगा। जो भी क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आप प्लीज ग्रुप में डालिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जरूर पढ़ाऊं आके। ओके, लुई है साइकोडायनामिक, वो बुक हम आपको डाल देंगे ग्रुप पर। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस। यस निशु, ओवर टू यू। Thank you very Thank you, much. sir. Thank you. Thank you very much for Thank you, sir. the Thank wonderful you. learning and making, giving us those important points which are so important, when it comes to studying. And I'm sure all of us will imbibe those points. Thank you very much. Thank you, Liaquat. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye.